خبریں پڑھ رہا تھا، اور یہ جو پہلے ہم سے موجود تھی اس میں زبیر الدین تھے، میراج الدین خان تھے، صبوہ خان تھی، نگہت آفرین تھی، حریم عارف تھی، مسلسل بات راہیلہ فردوس آ گئی، پھر فرحانہ اویس آئی۔ شروع میں جب انہوں نے خبریں پڑھی تو جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہیوی ایکسینٹڈ پنجابی ایکسینٹ اس میں شامل تھا۔ میں نے اپنے سینئرز کا جب ذکر کیا تو اس میں صبوہ خان بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے وہ دور دیکھا ہے، اور بہت سارے لوگ ہمارے درمیان ہیں جنہوں نے وہ دور دیکھا ہوگا کہ لوگ کتنے پرفیکشنسٹ تھے۔ جو پارٹیشن تھا شادی میں بھی، وہ اس میں جانے لگے تو راجپوت صاحب نے روکا، کیا کر رہے ہیں، پٹائی ہو جائے گی، وہاں تو خواتین پردے دار خواتین ہیں۔ کہنے لگے وہ تو انگریز ہیں نا، تو وہ کہنے لگے نہیں وہ پکی دلی والی ہیں، اور تو یہ دلی والے ہیں لیکن یہ انگریزوں کی طرح بولتے ہیں۔ تو فرحانہ کے سلسلے میں جب میں بات کر رہا تھا، اپنی مطلب یہ خواہش تھی کہ یہ بہت جلد یہ اس کمی کو دور کر لیں، اور انہوں نے بہت جلد اس کمی کو دور کیا۔ ان کے شوہر اویس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی شاید کمپنی نے اس تقریب میں خوش آمدید کہتے ہیں پروفیسر سہر انصاری، راحت سعید، عظمیٰ خالدہ اور وقار بھائی ہیں، شگفتہ فرحت، پروفیسر ادیب انصاری، کس کا میں نام لوں، میرے لیے سارے ہی محترم ہیں۔ تو آپ سب اس تقریب میں تشریف لائے، بہت بہت آپ سب کا شکریہ۔ اور اگلی مقررہ ہے ہماری سینئر نیوز کاسٹر ہے، جس وقت فرحانہ نے پی ٹی وی جوائن کیا اس وقت یہ پی ٹی وی چھوڑ چکی تھی۔ فرحانہ ان کی ٹرانسمیشن بہت شوق سے دیکھا کرتی تھی، اور فرحانہ نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ آپ 6 کتابوں کی مصنفہ ہیں، دلی سے ڈیفینس، انڈیا، محور کی تلاش، ساون گھر آجا، میرا پاکستان، پڑھ تو خیال۔ ان کی کتاب دلی سے ڈیفینس کا انڈیا میں ہندی ترجمہ کیا گیا، اور آپ کو اس کتاب پر ایوارڈ بھی دیا گیا۔ فرحانہ اویس پر گفتگو فرمائیں گی محترمہ صبوہ خان۔ اور صدر صاحب اور تمام منتظمین کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس پروگرام کا حصہ بنایا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی باقاعدہ باتیں شروع کروں، میں کہوں گی کہ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے۔ ابھی یہ نعیم سلطان صاحب کے بارے میں کہہ رہی ہوں میں، کیونکہ انہوں نے ابھی جو کچھ کہا ہے وہ سمجھیے کہ وہی سب میرے دل میں فرحانہ کے بھی۔ میرے خیال میں اس طرح آرٹس کونسل نے بہت اچھا کیا کہ اس طرح کا پروگرام کر رہے ہیں، جس میں ہمارے جتنے بھی فنکار ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور ایسے پروگرام اکثر منعقد ہونے چاہیے۔ اور پھر فرحانہ جیسی شخصیت جو ہر فن مولا ہے، آل راؤنڈر، ٹی وی سے ان کا طرح طرح کا تعلق ہے، نیوز کاسٹر، پروڈیوسر، رپورٹر، یقیناً وہ اتنی ٹیلنٹڈ ہیں کہ ان تمام پوزیشنز پر کام کر سکیں۔ یہ تعلق تو صرف پی ٹی وی سے ہے، میرا تعلق جہاں تک ان کے ساتھ ہے، لیکن اس کی انہوں نے پی ٹی وی کے علاوہ بھی کام کیا ہے، مثلا جیو، ڈان، سما، ہم ٹی وی، ایکسپریس اور چینل 92 سے انہوں نے دینی پروگرام کیے ہیں۔ اور یقیناً یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس پہ ذرا سی غلطی بھی آپ کو مشکل میں ڈال سکتی ہے، تو میں فرحانہ کو مبارکباد دیتی ہوں کہ بہت اچھی طرح وہ اور پھر تصور نے دیا اس پزل میں جانے کا نام۔ اگرچہ یہ پچھلی صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں، مگر بات کرنے میں کیا حرج ہے۔ فرحانہ نے جس پی ٹی وی میں قدم رکھا وہ رنگوں سے جگمگاتا تھا، جدید مشینوں اور روشنیوں سے مرصع تھا۔ پچھلی صدی میں جب ہم نے 70 کی دہائی میں پی ٹی وی جوائن کیا تو روشنیاں کچھ مدھم تھیں، کچھ دھندلاہٹ تھی، ہر چیز صرف کالی اور سفید تھی، رنگوں سے پی ٹی وی کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ کینوس چھوٹا تھا اور سب ایک دوسرے کے نزدیک تھے۔ 71 کا حادثہ گزر چکا تھا، ایک اداسی سی تھی اور ہم نئے سرے سے منظم ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ شام 5 بجے کی خبروں سے ہم نے اپنی خبروں کا آغاز کیا، 1 مہینے کے اندر ہی خبر نامے تک پہنچ گئے،
यानी 25 रुपए की जगह 40 रुपए मिल जाएंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि शौक का कोई मोल नहीं। पीटीवी पर आने का शौक ऐसा शौक है जिसमें पैसों की कोई अहमियत नहीं होती। वैसे भी पिछले वक्तों के हैं हम लोग, आप हमें कुछ न कहें। हम लोग हमने 50 दहाइयाँ पिछली सदी में गुजारी हैं और 28 दहाइयाँ इस सदी में गुजारी हैं। जी हाँ, हम वो लोग हैं कि जब पीटीवी ब्लैक एंड वाइट था और नहीं था कुछ पीटीवी के सिवा। पूरा पाकिस्तान पीटीवी के 9 बजे के खबरनामे का मुंतज़िर रहता था। हमारे ज़माने में, यानी वो 14 साल जब मैं पीटीवी के साथ थी, उस ज़माने में तब्दीलियाँ भी बहुत आई। मार्शल लॉ आया, मार्शल लॉ गया, किसी को हमने काफिर कह दिया, किसी को हमने मुसलमान कह दिया। दुपट्टा गले में डालने की बजाय सर पर ओढ़ने का ऑर्डर आ गया, हमने वो भी मंजूर किया। मगर सबसे बड़ी तब्दीली ये आई कि पीटीवी ब्लैक एंड वाइट की जगह रंगीन हो गया। फरहाना जैसे न्यूज़ कास्टर्स पर कि अगली नस्ल पहले से ज़्यादा पुरकशिश, काबिल और हरफनवार थी। भी रहे। रेडियो से पुराना ताल्लुक, कई किताबों के मुसन्निफ हैं जिनमें इनकी दीनी किताब ज़िक्र उम्र का बहुत ही मशहूर हुई, बहुत ज़्यादा लोगों में पसंद की गई और इस किताब ने सनद पाई। गिरामी के साथ शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला ज़िलक़ार सदर गिरामी सदर मोहम्मद अहमद काजी साहब, साहिब एजाज़ फरहाना अवैस, तमाम ख़वातीन हज़रात, इतनी खूबसूरत और दिलचस्प और खुश्क होठों पर मुस्कुराहटों की ताज़गी से भरी तहरीर सुनने के बाद अब मैं बहुत संजीदा सी गुफ्तगू आपसे कर सकूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगा मैंने इतनी इसमें हमें अच्छा यूँ लगा कि आप मेरे दौर की नहीं, मेरे से भी बाद के दौर की बात करें। आज हम जवान हैं डॉक्टर फरहाना अवैस के बारे में गुफ्तगू करने। हमेशा गुरेज करता हूँ जो कुछ कहा जा चुका उससे परहेज किया जाए। कैनेट कॉलेज की ग्रेजुएट हैं साइंस, पंजाब भर की लाखों तालिबात की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह उन्हें कैनेट कॉलेज में तालीम हासिल करने का मौका दिया, वो वहाँ से फारिग तहसील जाकर कराची आई। कराची बिल्कुल इनके लिए मुख्तलिफ और नया था। इनकी अब मेरी कैफियत कम बेश यकसा है। मैं हैदराबाद छोड़ के 35-40 साल की ज़िंदगी गुजार कर जब हैदराबाद आया, कराची आया, तो एक सबन बनते ये बड़े शहर से आई थी। मेरे बाद के साथी जो अहमद शाह चले गए, महमूद खान बैठे हैं, एक बहुत बड़ा इस वक्त जो 60 और 65 की उम्र के लोग हैं और इस पूरे माशरे में, पूरे मुल्क में, पाकिस्तान के तमाम इदारों में जिनकी बड़ी अहमियत है हर शोबहाए ज़िंदगी, उसकी फिक्र नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि खातून ने अपने घर को मुनज़्ज़म करने में, बच्चों की तालीम के अंदर और उनकी तरबियत के अंदर जो भी कर सकती थी, बाहर के अपने प्रोग्राम के हवाले से उस पर कोई हर्फ ना आने दिया और बच्चों की तालीम में और अपने प्रोग्राम के अंदर एक मुतवाज़न तरीके से इन्होंने बाहिसान अंजाम दिया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला का कि उन्होंने मुझे ऐसी दोनों बहुत बड़े खुश असलूबी से अदा किया। इसके अलावा मुख्तलिफ चैनल से रमज़ान ट्रांसमिशन, मुहर्रम ट्रांसमिशन, जियो से रबीउल अव्वल के 12 एपिसोड स्पेशल प्रोग्राम जो राष्ट्र बिना शहीद के लिए किया गया वो भी आपने होस्ट किया, इधर लाहौर और कराची से, दोनों जगह से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत एहसान कि आज रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे अपने कैरियर के तकरीबन 30 साल के बाद ये जो एजाज़ मिला है कि माशाल्लाह मेरे इतने प्यारे दोस्त, अहबाब और मेरे उस्ताद मोहतरम यहाँ मौजूद हैं और मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं।
عام طور سے یہی کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی شخص یا جو کوئی بھی شخصیت ہے وہ اپنے والدین کا یا اپنے اساتذہ کرام کا پرتو ہوتی ہے. وہ میرے والدین کی تھی اور میرے اساتذہ کرام کی. میری کیا مجال کہ میں کچھ کر سکوں، یہ میرے رب کا احسان ہے مجھ پر کہ اس نے مجھے اتنے اچھے والدین دیے جنہوں نے میری اتنی اچھی تربیت کی، اور اتنے اچھے دوست احباب، میرے استاد، میرے ساتھی اور جیون ساتھی عطا کیا کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ کامیابیاں، یہ عزت عطا کی. ہاں، لیکن انسان کی ایک کوشش جو ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے. زندگی میں اس کو مواقع بہت ملتے ہیں، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ بہت سارے مواقع عطا کرتا ہے. جیسے بھی یہاں کہا بھی گیا کہ میں ڈرامہ سائٹ پہ بھی جا سکتی تھی، یا مجھے تو فلموں کی بھی آفر ہوئی ویسے، لیکن یہ انتخاب انسان نے خود کرنا ہوتا ہے. یہ سچ ہے کہ میں نیوز میں آئی، وہ بڑا اتفاقی تھا میرا آنا، اس میں میری پلاننگ نہیں تھی، میری کوئی خواہش نہیں تھی. میں صرف ایک مرتبہ اسٹوڈیو گئی تھی اور یہ دیکھنے کے لیے کہ نیوز کیسے ہوتی ہیں، کیونکہ جب ہم لوگ تعلیم حاصل کر رہے تھے تو اس وقت نیوز اینکرز کی جو رسپیکٹ ہوتی تھی اور جس طرح سے ان کو بہت ان کی پذیرائی ہوتی تھی، کہیں جاتے تھے تو بہت رسپیکٹ کے ساتھ ان سے لوگ ملتے تھے، تو بڑا اچھا لگتا تھا. تو وہ چیز ذہن میں تھی. تو ڈیورنگ میری ایجوکیشن لائف کے دوران ہی میں نے ایک دفعہ سوچا کہ دیکھنا چاہیے کہ اسٹوڈیو میں نیوز اینکرز کیسے آتے ہیں، کیسے کام کرتے ہیں. وہ خواہش مجھے اسٹوڈیو تک لے کر گئی، اور پھر وہاں پر جو مجھے صاحب وزٹ کرا رہے تھے انہوں نے ایسے شوق پر اٹھا کے میرا بھی ایک آڈیشن کرا دیا، اور وہ آڈیشن مجھے پھر آج یہاں تک لے آیا کہ پاکستان ٹیلی ویژن سے میرا انتخاب ہو گیا. اور پھر میں نے اس شوق کو بہت سیریس لیا. لیکن ہاں، وہ دوسرا کام جس کی یہاں بات ہوئی کہ میرے مذہبی پروگراموں کے حوالے سے، وہ میری اپنی چوائس تھی. میں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن میں دینی پروگرام کرنے میں خواتین بہت کم نظر آتی ہیں. بہت ہی کم کوئی پروگرام ہوتا تھا، کوئی کوئز پروگرام ہو گیا جس میں ٹیلی ویژن میں کوئی ایسی خاتون کبھی کبھار آ جاتی تھی کہ قرآن کی بات ہو رہی ہے، حدیث کی بات ہو رہی ہے، یا پھر میلاد ہو جاتے تھے تو اس میں ہماری کوئی اساتذہ آ جاتی تھیں کراچی یونیورسٹی کی جو کوئی اسپیچ کر لیتی تھیں. تو اس کے علاوہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی ریگولر پروگرام ہو. یہ میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے NTM جو پہلا پرائیویٹ چینل تھا اس میں رمضان ٹرانسمیشن جو 94-95 میں ہوئی تھی، پہلی دفعہ اس میں موقع ملا. لیکن اس کو میں نے بھرپور انداز میں کیا، اور اس وقت میں نے اللہ رب العزت سے یہ دعا کی کہ پروردگار، تو نے مجھے بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے، تو نے مجھے اچھی آواز دی ہے، میرے پاس علم ہے، مجھے اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے. اور وہ میں سمجھتی ہوں کہ میری دعا اللہ رب العزت نے قبول فرمائی. اس کا بڑا احسان کہ میں نے اپنی آواز کو، میں نے اپنی شخصیت کو، میں نے اپنی علمیت کو دین کے لیے مختص کر دیا. آپ یقین کریں، میرا ہر پروگرام جو میں دینی پروگرام کرتی ہوں، میرے لیے ہر دفعہ وہ ایک نیا پروگرام ہوتا ہے. میں اس کے لیے بے انتہا محنت کرتی ہوں، میں اس کے لیے بہت ساری کتابیں پڑھتی ہوں، اور میرا کوئی پروگرام وضو کے بغیر نہیں ہوتا. سے ہمیشہ رجوع کیا. جتنے علماء کرام آتے تھے میں سب سے پوچھتی تھی مجھے اس ٹاپک پہ کون سی کتاب پڑھنی چاہیے، کس کا لکھا ہوا بہت اچھا ہے، کس عالم نے اس پہ بہت اچھی بات کی ہے. تو اس پہ میں نے بہت زیادہ کوشش کی، اور پھر یہ بہت سالوں کی محنت جب میں نے محسوس کیا کہ میں دین کے پروگرام بہت کر رہی ہوں اور مجھے اس میں کچھ اسپیشلائز کر لینا چاہیے، تو وہ ایک میرا قدم تھا. جب میں نے PhD کے لیے قدم اٹھایا تو اصل میں دین میں کچھ کرنا چاہتی تھی. لیکن جب میں کراچی یونیورسٹی پہنچی تو مجھے پتہ چلا کہ سوشل سائنسز میں اب وہ جو پہلے ایک اجازت تھی کہ ایک سبجیکٹ سے دوسرے سبجیکٹ میں آپ تبدیل کر کے تو PhD کر سکتے ہیں، وہ ختم ہو گئی ہے. تو مجھے بھی کہا گیا کہ اب آپ صرف پولیٹیکل سائنس میں ہی کر سکتی ہیں PhD. تو میں نے سوچا یہ تو پھر بیکار ہے، میں کیا کروں گی پولیٹیکل سائنس میں. لیکن اس وقت مجھے ایک مہربان، میرے بہت پیارے سے کہنا چاہیے، میرے بہت ہی شفیق استاد محمد احمد قادری صاحب ملے، جنہوں نے کہا کہ اگر تم ایک چیز سوچ کر آئی ہو کہ تمہیں کچھ کرنا ہے تو تم اب واپس نہ جاؤ. اب تم نے جب ذہن بنا لیا ہے تو ٹھیک ہے، اپنی سوچ کو اس موضوع سے دوسرے موضوع کی طرف لاتے ہوئے اس کو کنٹینیو کرو. اور یہ ڈاکٹر صاحب کی رہنمائی تھی، آپ کی مدد تھی، آپ نے مجھے گائیڈ کیا اور میری تمام چیزوں میں میری رہنمائی فرماتے رہے، جس کی وجہ سے آج یہ جو میرا نام ہے ڈاکٹر فرحانہ اویس، یہ ان کا مرہون منت ہے. یہ ان کی اصل میں یہ ان کی محنت ہے، ان کی رہنمائی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی انسان
जब कुछ फोकस करके ज़िंदगी में और टारगेट करके चलता है कि मुझे ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है, तो वो ज़रूर हासिल कर सकता है। उसको मुखलिस होना चाहिए अपने काम में, अपनी नीयत में, और उसके साथ साथ जो यहाँ पर सब ने कहा, और ख़ास तौर से मेरे जीवन साथी ने जो मुझे अप्रिशिएट किया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इंसान को बैलेंस होना चाहिए। मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे खूबसूरत प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स सिर्फ अपने बच्चों की खातिर मना कर दिए। बासित अली पैगाम पाकिस्तान की तरफ से नेशनल लेवल और जितनी मोहब्बतों के साथ मुख्तलिफ ज़ावियाए निगाह के अहबाब यहाँ मौजूद हैं, और जिस तरीके से बज़्ल संजीदगी भी होती रही और मामलात ज़िंदगी भी बढ़ते रहे, यकीनन इसके लिए मैं सिर्फ एक ही बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये इदारा जहाँ ये तकरीब मुनक़िद हो रही है और अपने इख्तितामी लम्हात की तरफ जा रही है, इसका सबसे बड़ा ख़ासा ये है कि इसमें और इस इदारे से मुंसलिक अहबाब ने एक खूबसूरत फैसला ज़रूर किया है, वो ये कि लोगों के मरने के बाद उनके कब्रों में कब्र सजाने के बजाय ज़िंदगी में ये एहसास कर लो कि जो ज़िंदा लोग हैं उनकी मोहब्बतों का एतराफ़ करके उनके लिए दुआएं जुमले अपनी ज़िंदगी में कह दो, ताकि आने वाले लम्हात इस बात के गवाह हों कि फ़ला फ़र्द ने फ़ला लम्हे में मेरे लिए दुआ की थी, तो उनकी नस्लें भी तुम्हारे लिए इसी तरह दुआएं करती हैं। बेइंतहा मुबारकबाद के काबिल है, और मैं मुबारकबाद तहे दिल से दूँगा जनाब हमेशा साहब को भी, अहबाब को भी, कि वही बराह रास्त पूछ लिया जाए, ज़्यादा बेहतर है। सर अंसारी भाई हमारे मौजूद हैं, हमारे राज साहब मौजूद हैं यहाँ पर, अहबाब जितने भी हैं। असल में बात यह है, डॉक्टर फरहाना उवैस, आपने अपने वालिदैन की दुआएं और असातिज़ा की दुआओं के साथ इतनी सारी दुआएं ज़िंदगी भर समेटी हैं, फिर ये कैसे मुमकिन था कि आपके कदम नाकामी की तरफ जाते हैं? कामयाबी चाहती ही उनके साथ है जिनके साथ दुआएं होती हैं हमेशा। और मुझे बहुत खुशी है, हैदराबाद के हजरात बैठे हुए हैं, कुछ मुझे पता है, हैदराबाद दक्कन की मरगे ज़राफ़त पड़क रही है, तो मैंने उस वक्त एक जुमला बर्जस्ता कहा कि मेरी वालदा भी औरंगाबाद ही की थी और वालिद भी औरंगाबाद के, और सबसे ज़्यादा डांट अगर किसी बात पर पड़ती थी घर में तो वो ये कि उर्दू को उर्दू की तरह बरतो, और अगर बरतना नहीं आती तो सीखो, और सीख नहीं सकते तो फिर ज़बान बंद कर लो, बेहतर है। हमारी वालदा साहबा अल्लाह उनको हकीकत रहमत करे, और मेरे साजा में रिजवान भाई आप तो जानते होंगे, हजरात भी जानते होंगे, जिस उस्ताद की मैंने जूतियाँ उठाई, अल्लाह तेरा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये फैज़ान नज़र था यहाँ के मकतब की करामत थी कि उनकी दुआओं से मिला मौलाना अब्दुल हामिद बदायूनी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह। क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अक्सर इस्लामी उलूम में उनसे रहनुमाई हासिल करते थे, और मेरी उम्र उस वक्त मुश्किल से 8 साल की होगी। एक जुमला उनका हमेशा वो फरमाते थे, मियाँ तुम्हें ये भी नहीं पता कि मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, मैं कौन हूँ, और तुम्हें कल ये भी नहीं पता होगा कि मैं कौन था, लेकिन इस बीच में एक सफ़र है, उसे याद रखना कि बस ये इल्म का सफ़र है, इसमें ख़यानत न करना, जो इल्म मिले उसे लोगों तक पहुँचा दो। ख़वातीन और हज़रात, हमें इस वक्त आर्ट काउंसिल में, जहाँ हमारे मुल्क की नामवर एंकर, टीवी की एंकर और इस्लामिक रिसर्च की बहुत ही बड़ी मुकर्ररा जनाब डॉक्टर फरहाना उवैस साहिबा के एजाज़ में आज की ये तकरीब पज़ीराई में हम मौजूद हैं। और आपने जैसा देखा कि जिन जिन लोगों ने इनके बारे में खिताब किया, और सदर सदारत है और दीगर लोग हैं, वो जो खिताब किया वो आपने सुना होगा। और मैं अभी इस वक्त दूंगा माइक हमारे मजलिस सदारत जनाब डॉक्टर मोहम्मद अहमद काजी साहब, किसान टीवी की मारूफ एंकर डॉक्टर फरहाना उवैस के एजाज़ में तकरीब पज़ीराई, और इनके जो काम है इनका, उनकी पज़ीराई की गई है। इस हवाले से हम फरहाना उवैस साहिबा से बात करेंगे।
तो आप कैसा महसूस करती हैं कि इस तरह की तकरीबात आपके लिए भी की और भी तकरीबात होती है जो आपकी खिदमत के तरफ हैं, तो आप अपने काम को किस तरह देखती हैं? और आर्ट काउंसिल ने इतनी बड़ी तकरीब आपकी की, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी बहुत शुक्रिया। मैं समझती हूँ कि आर्ट्स काउंसिल में अहमद शाह साहब को अप्रिशिएट करना चाहूँगी इस हवाले से, सदर आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह साहब को, कि जिन्होंने ये कदम उठाया, और वो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी के 20-25 साल 30 साल जितने भी अपने अपने शोबों में कोई काम किया है उनकी पजीराई कर रहे हैं वो इस तरह से। मैं समझती हूँ कि दीनी प्रोग्रामों के हवाले से आज जो मेरा नाम लिया गया, तो ये एक एजाज मेरा नहीं बल्कि मेरे साथ उन तमाम लोगों का एजाज है जो डिफरेंट चैनल्स पे दीनी प्रोग्राम कर रहे हैं, चाहे वो एंकर्स हैं, चाहे वो नातखा हैं, चाहे वो उलमा कराम हैं। उन सब का एक ही मकसद है कि दीन की बात को खूबसूरत अंदाज में, सहल अंदाज में लोगों तक पहुंचा दिया जाए। और हमारी पजीराई जो है, दरअसल वो ये पजीराई हमें ये हौसला दे रही है कि हमने मजीद अपने काम को और बेहतर बनाना है और अच्छे अंदाज से लोगों तक दीन की बात को पहुंचाना है। मोहम्मद अहमद कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर फरहाना उवैस के इलाज में आज की पजीराई आई है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? माशाल्लाह फरहाना उवैस जो माशाल्लाह इल्मी एतबार से भी और फिक्री एतबार से भी और किरदार के एतबार से भी एक मजबूत शख्सियत है, और इनके लबो लहजे से लेकर और इनके इल्मी खिदमात जो खास तौर पर दीनी खिदमात है उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज की जो तकरीब है माशाल्लाह इस वजह से बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है कि बहुत कम ऐसा होता है कि किसी शख्स ने कोई बहुत बड़ा इल्मी काम किया हो और उसका एजाज उसको मिल गया हो। तो ये बहुत बड़ी बात है कि माशाल्लाह फरहाना ने सिर्फ इल्मी काम नहीं किया बल्कि नौजवानों तक इस इल्मी काम को पहुंचाया भी, और पीएचडी भी जामिया कराची से इन्हें मिली है। इसलिए मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये आर्ट्स काउंसिल भी और सारे अहबाब भी और तमाम मीडिया और जो इनसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं सब काबिल मुबारकबाद है कि इन सब की शिरकत में इन खातून यानी डॉक्टर फरहाना उवैस के लिए दुआओं के दरवाजे खोल दिए। अल्लाह इन्हें खुश रखे, आमीन। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम लोग मौजूद हैं इस वक्त आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में, जो तकरीबी पजीराई डॉक्टर फरहाना उवैस की मुनक़िद की है आर्ट काउंसिल ने। तो हमारी कराची टेलीविजन की बहुत ही सीनियर एंकर न्यूज कास्टर हमारे साथ मौजूद हैं, तबुआ खान। मैं उनसे पूछूंगा कि आज की तकरीब के हवाले से क्या कहेंगे। मैं समझती हूँ बहुत अच्छी तकरीब है और बहुत एनकरेजिंग है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो काम करते हैं जिंदगी भर और उनको कभी कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता। ये बहुत अच्छी बात है, रिकॉग्नाइज किया है। ऐसे प्रोग्राम में समझती हूँ अक्सर होने चाहिए और हम जैसे सीनियर लोगों को भी शामिल होने से और भी ज्यादा मेरा ख्याल बहुत सी पुरानी बातें आपको जैसे मालूम मेरे से आपको तो नहीं, बाकी लोगों को तो मालूम होगा ना कि किस तरह हमारा जमाना था और आजकल क्या जमाना है। ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना और रंगों का जमाना बहुत मुख्तलिफ है। नहीं, आप कैसे देख रही हैं कि इस तरह की तकरीबात होनी चाहिए जो साहिब हैसियत जिनकी खिदमत है मुख्तलिफ शोबे में, आप क्या समझती हैं इनके लिए ऐसी तकरीबात होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, इंकरेजिंग उसके लिए बहुत जरूरी है, रिकॉग्निशन के लिए बहुत जरूरी है। और फिर लोग जो आते हैं सुनते हैं, आपका भी जो मेरे से भी सुन रहे हैं लोग, तो जो यंग लोग हैं वो बहुत इससे एनकरेज होंगे और इस तरफ और ज्यादा आएंगे। और बाज़ लोगों को पता भी है कि फरहाना कौन है, और आज कितने लोगों को मालूम होगा कि उन्होंने कितना काम किया। मुझे भी नहीं खुद मालूम था कि इतना ज्यादा उन्होंने, खासतौर पर अहमद कादरी साहब जब उन्होंने तकरीर की प्रोफेसर साहब ने, तो मुझे पता चला किस तरह इन्होंने काम किया है और किस तरह मेहनत करके इस मकाम तक पहुंची। बहुत ही अच्छा, मैं कहती हूँ होने चाहिए ऐसे बहुत प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, हमें इस वक्त हैं आर्ट काउंसिल में एतराफ़ कमाल डॉक्टर फरहाना उवैस के लिए, जो मारूफ एंकर भी हैं और इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। तो मैं मौजूद हूँ हमारे मुल्क के नामवर अदीब, शायर, नक़ाद मोहतरम जनाब सैर अंसारी साहब। हम उनसे बात करेंगे कि इस तरह की तकरीब आप कैसे देखते हैं और फरहाना उवैस की खिदमत और उनके काम के बारे में। बहुत शुक्रिया। बहुत ही खुशी हुई कि एतराफ़ कमाल के सिलसिले में ये मिसाल सामने आई है, और ये पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल की बड़ी अच्छी कोशिश है कि वो हर साल एक किसी शख्सियत को एतराफ़ कमाल का जो है वो सोवेनियर और उसकी जो शील्ड है वो पेश करते हैं। आज जो है वो डॉक्टर फरहाना उवैस जो कि एक एंकर है मारूफ टीवी की, और उन्होंने डॉक्टर प्रोफेसर अहमद कादरी की
निगरानी में PhD किया है कराची यूनिवर्सिटी से। तो ये बड़ी काबिल तारीफ बात है कि हमारे शो बिजनेस में आए हैं जिनसे आम माशरे को एक तक़वियत भी मिलेगी और दूसरे लोग भी कोशिश करेंगे और तहजीब को भी साफ और उसके लिए मुल्क की खिदमत अंजाम दें। तो इस लिहाज से आज मैं देखता हूँ कि बड़ा अच्छा इज्तिमा है, यहाँ अच्छे अच्छे लोग यहाँ आए हैं और बहुत ही खुश होकर उन्होंने इस तकरीब का एहतमाम भी किया और इस्तकबाल भी किया। तो हम चाहते हैं कि इस तरह की मिसाल कायम रहे और ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहे। बहुत शुक्रिया खैर साहब, बहुत शुक्रिया। मौजूद हैं आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में एहतियात कमाल डॉक्टर फरहाना ओवैस जो मारूफ एंकर हैं और स्कॉलर नईम सुल्तान साहब जो मारूफ न्यूज एंकर हैं और रहे हैं कराची टेलीविजन में। तो हम इनसे कहेंगे कि आज की तकरीब को आप किस तरह देखते हैं? मेरे ख्याल में आज की तकरीब बहुत ही अच्छी थी, इसलिए कि इसमें कई सारे जो न्यूज़ एंकर्स थे उन्होंने शिरकत की और अपनी राय का इजहार किया और बड़े बड़े तालीमी जो शख्सियात थी, इल्मी शख्सियात, उन्होंने भी अपने राय का इजहार किया। तो बड़ा मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला और बड़ी पुररौनक तकरीब थी। और क्योंकि डॉक्टर फरहाना अवैस से हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात है, ज़ाहिर है वो भी न्यूज़ एंकर थी और मैं भी, तो हमारे बड़ा अच्छा एक तकरीब रही और बड़ा मज़ा आया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नईम सुल्तान साहब। नाज़रीन, हम मौजूद हैं आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में, जो आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची ने एतराफ़ कमाल की है डॉक्टर फरहाना ओवैस के एजाज में, जो मारूफ इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, एंकर भी हैं, कंपेयर भी हैं। तो शाहिदा खुर्शीद कंवल मेरे साथ हैं। शाहिदा खुर्शीद, ये बताइए कि आज की तकरीब किस तरह आप देखते हैं, कैसी रही और क्या ऐसी तकरीबात होती रहती हैं और इनके एजाज में कैसे मुनक़िद हुई? ये हमारा एक विजन था जो अहमद शाह साहब ने हमको दिया था कि जो भी अपनी अपनी फिल्में जिन्होंने बहुत काम किया है उनके अतराफ़ कमाल के लिए तकरीबात ही मुनक़िद करना चाहिए। तो पहला नाम हमने फरहाना ओवैस का उसमें मुंतखब किया और तकरीब जैसे कि आपके सामने है, भरपूर शिरकत लोगों की, बहुत कामयाब तकरीब और इतने ज्यादा अच्छे सामीन थे आज और बहुत अच्छे मुक़र्रिर थे। तो आज की इस तकरीब को बहुत ज्यादा कामयाब तकरीब कहा जा सकता है। बहुत शुक्रिया शाहिदा साहब, बहुत शुक्रिया।